was also in another Muslim university. And at present, he is associated with orientation courses, refresher programs, and research methodology courses organized by Human Resource Development Center of many state and central universities like JNU, Jamia Millia, AMU, BHU, Kurukshetra University, LBS University, Punjab University, Himachal Pradesh University of Rajasthan, University of Rajasthan, Gujarat University through virtual mode. And so many works he has also done, and time does not permit to go through all the achievements, but it is really wonderful to have Professor S.K. Yadav as resource person of this first session of the third day. Sir, I welcome you and I request you, please you start your lecture. The topic of the lecture is international research funding agencies. It is very important topic. Please go through it very carefully. All the participants requested. Yes, sir. You are most welcome again. Please start. Thank you, Professor Nasreen, for introducing very elaborative way. Thank you very much. Good morning to everybody. Respected Professor Abbasi Madam and dear participant. Today topic is very relevant and it will be used by you throughout your career. So, we will discuss about the research funding, from where you will get the fund for conducting research at national level or international level. Should I speak in Hindi, English, both? Professor Nasreen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. English, speak in English or Sir, huh? Hindi. Hindi, English both, sir. Hindi. Sir, English. Sir, English. Okay, I will try to in both languages. Whenever you feel I should repeat, I will repeat in English, I will repeat in Hindi, don't worry. But you tell, sir, we could not follow it, then I will do it. So, friend, we all know research is very important. And this is one example before all of us. We are sitting at our residence. हम सब अपने घर पे बैठे हुए हैं. मैं गुड़गांव में बैठा हुआ हूँ. मैडम नसरीन जो है कोऑर्डिनेट जो है अलीगढ़ से कर रही है. तो देखिए ये रिसर्च की ही देन है. It is due to the research only because we are one of the global leader in ICT. Before 2020, have you ever thought कि ऐसा कभी होगा? हम आज सब अलीगढ़ के अंदर होते. और today we are sitting comfortably at our home and we are attending this refresher course of teacher education. तो देखिए रिसर्च की कितने जो है it has made everything very easy, improved our quality of life. So friend, if you see in COVID period, it was very difficult. All school were closed, university were closed, colleges were closed, teaching were also suspended or closed in a one way. Examination were also closed, cancelled. आप सभी लोग जानते हैं. So what happened? Being advanced in research, what happens? Immediately after 15 or 20 days, we switch over to the alternative mode of the online. और आप सभी ने अपनी पढ़ाई, अपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों ने घर पे बैठ के पढ़ा, आपने सारा कोर्स पूरा किया, आपने एग्जाम लिए. यू कंडक्टेड ऑनलाइन एग्जाम. हैव यू एवर थॉट कि ऑनलाइन एग्जाम भी होते हैं? आप कंपटीशन वगैरह में आपने देखा, एंट्रेंस हुआ मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, वहाँ चलता था. मगर ऐसे टाइप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उनका सबको आंसर को असेस करना, तो ये इतना आसान हुआ. तो आप लोग आज उसी ऑनलाइन मोड को प्रीफर करते हैं, स्टूडेंट प्रीफर करते हैं. आपको कहते होंगे सर ऑनलाइन मोड से पढ़ा दीजिए, घर से ही आप एग्जाम ले लीजिए. कभी आपने सोचा था कि ऐसा एग्जाम हम कर सकते हैं? क्यों डॉक्टर नारायण सिंह, हैव यू एवर थॉट ऑनलाइन एग्जाम भी होता है? क्यों डॉक्टर नारायण सिंह, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी 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 सर, कभी सोचा था इस तरह एग्जाम नहीं होते हैं? जी नहीं, इस तरीके से नहीं सोचा था सर, बिल्कुल. और अब कैसा लग रहा है आपको?
बहुत अच्छा लग रहा है जो हमें ये टेक्निकल जो तकनीकी संचार के माध्यम से हम ज्ञान से जो विद्वत लोग हैं उनसे ज्ञान अर्जन हम घर बैठे ही कर रहे हैं हाँ, और बहुत सारे विद्वत लोगों का ज्ञान हमें ग्रहण करने को मिल रहा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको काफी प्रशंसनीय माना जा रहा है। प्रशंसनीय, देखिए पहले 2020 से प्रशंसनीय नहीं था, मगर अब पिछले 4 साल में इतना जो है इसका जी 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 पॉपुलर होगा, हर व्यक्ति इसको, अब बच्चे भी, मैं देखता हूँ क्योंकि आई एम आल्सो टीचर लाइक यू, आई यूजुअली गेट अपॉर्चुनिटी टू टीच हियर एंड देयर एंड टू ज्वाइन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो वो कहते हैं सर वो ऑनलाइन मोड से ही ठीक था, अब ब्लेंडेड मोड हो गया है, अब यू कैन यूज बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। एनीवे, तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई हम लोग जो है अब दोनों जो है मोड में ट्रेंड हो गए हैं। एक तो ट्रेडिशनल तो हमारा था ही, शुरू से हम पढ़ाई रहे थे हम सब लोग, और फिर ऑनलाइन में भी चाहे कोविड से हमें नुकसान हुआ, लॉट ऑफ लॉस, ह्यूमन लॉस, मटेरियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, मगर उससे कुछ फायदा भी हुआ। आप जितने भी लोग बैठे हुए अटेंड कर रहे हो, सब लोगों ने इसको अटेंड किया, एवरीबॉडी इज बेनिफिटेड। अब जब हमें आफ्टर द इंडिपेंडेंस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पहला कमीशन सेटअप किया, आपको पता ही होगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो राधा कृष्णन हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो इसको चेयर किया उन्होंने। अब देखिए उन्होंने वो गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई देखिए रिसर्च ही सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए राधा कृष्णन कमीशन ने या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने 1948-49 में ये सोचा कि भाई ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी हो, मोर और मोर यूनिवर्सिटी शुड बी देयर। क्यों हो? यूनिवर्सिटीज आर प्लेसेस फॉर जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज, न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू स्किल्स। यूनिवर्सिटी में रिसर्च होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर कॉम्पिटेंट स्टाफ है आप जैसा, यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी के अंदर लैब है, यूनिवर्सिटी के अंदर इक्विपमेंट है। आप सभी ने पीएचडी की है, आप सभी की पीएचडी करा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज में ही नया ज्ञान पैदा होता है रिसर्च के द्वारा। तो इस कमीशन ने कहा कि भाई हमें ऐसी एक बॉडी होनी चाहिए जो सारे देश में ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी खोले, मोर और मोर यूनिवर्सिटीज, मोर और मोर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। तो उन्होंने एक बॉडी रिकमेंड की, यू ऑल नो इट वेरी वेल, दैट इज ए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। अब यूजीसी जो इस कमीशन ने, उसका मकसद ये था कि भाई जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन का नॉर्म स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करे यूजीसी, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज खुलवाए, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी खुलवाए और फिर उनको एक्रेडिट करे, क्वालिटी की एजुकेशन होनी चाहिए। तो व्हाट हैपेंड, यूनिवर्सिटी यूजीसी स्टार्टेड टू वर्क इन 1956 और देखिए 1950 और 51 में अगर आप देखेंगे डेटा को, यू विल फाइंड दैट ओनली लेस देन 30 यूनिवर्सिटी इन दिस कंट्री, लेस देन 600 कॉलेजेस इन दिस कंट्री। और आज आपको पता है कितने हो गए हैं? डू यू नो इट? नाउ इससे मोर देन 1150, 1150 से ज्यादा तो यूनिवर्सिटी हो गई है, 45,000 से ज्यादा कॉलेज हो गए हैं, मगर फिर भी कम है। हमारा देश बहुत बड़ा है, मगर यूजीसी की वजह से, और देखो इतने यूनिवर्सिटी हुई, इतने कॉलेज हुए, हम सब पढ़ लिख गए, हम सब पीएचडी कर ली, हम रिसर्च कर ली, रिसर्च करा रहे हैं, रिसर्च के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नया नया जो है इन्वेंशन कर रहे हैं। और वट एवर यू आर सीइंग अराउंड यू, अपने चारों तरफ आप घर में बैठ के जो भी चारों तरफ चीज देख रहे हो, एसी है, फैन है, टेबल है, कुर्सी है, वॉच है, तो ये सब किसी ने रिसर्च की। तो रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समबॉडी हैज कंडक्टेड रिसर्च सम टाइम। तो वो फिर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में हमें यूज कर रहे हैं, हम आराम से बैठे हुए हैं और इट हैज मेड आवर लाइफ वेरी यूजफुल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी to use all the gadgets. What happened? So this is due to the vision of Dr. Radhakrishnan. Radhakrishnan was, you know it, a great philosopher, teacher, visionary. Due to his vision, after that, what happened? 1956, it started full-fledged way to function, and the lot of development in the field of higher education has happened. You know it very well, and we know it very well. After that, there was another commission in 1952-53.
That was also, chaired by Professor Mudaliar. Mudaliar was member of the University Education Commission, and research was also emphasized in that commission. Then another important commission was in 1964 and 66. Responsibility was given to Dr. D.S. Kothari, Daulat Singh Kothari. He was the head of Department of Physics in Delhi University. Later on, he became the chairperson of UGC. So, you know it very well. It was a very large and big, you can say, the commission, and this commission recommended that research should be conducted from pre-primary to higher education to the technical education, every field in teacher education. So, friend, you know it very well. The research was conducted in every field, and on the basis of that, first policy of education was formulated. You know it when the first policy of education was formulated in the country. Dr. Renu Gupta, can you tell me? Madam Ritu Gupta, sorry. Yes, sir. Yes, sir. पहली पॉलिसी कब बनी? पहली पॉलिसी हमारी 1968 में बनी, और इसका जो वो था, इसका जो बेसिस था वो कोठारी कमीशन था. हर पॉलिसी होता है, इसमें पहले रिसर्च करते हैं. जब भी कमीशन कमेटी बैठते हैं तो रिसर्च करते हैं, रिसर्च के डॉक्यूमेंट नेशनल इंटरनेशनल कंसल्ट करते हैं, आप लोगों से राय लेते हैं, फिर वो कुछ रिकमेंडेशन करते हैं, और वो रिकमेंडेशन फिर पॉलिसी के अंदर जो है इंक्लूड कर ली जाती है. तो जितनी, अगर पॉलिसी के अंदर जितनी भी रिकमेंडेशन इंक्लूड की जाती हैं, दीज आर द बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट. The recommendation of the commission committee is not binding on the government. The first policy on education was implemented in 1968. Every country has mostly the education policy, और उसी के द्वारा ही education संचालित की जाती है. Education is governed by the policy. अगर अच्छी पॉलिसी है, अच्छी तरह क्रियान्वयन किया, तो वो फील्ड आगे होगा, देश आगे होगा, अच्छे क्वालिटी के प्रोफेशनल होंगे, अच्छे टीचर एजुकेटर होंगे. अगर टीचर एजुकेटर होंगे तो अच्छा जो है वो पढ़ाएंगे, अच्छे टीचर बनाएंगे, और टीचर ही सबसे बड़ी चीज होती है. टीचर ही इंजीनियर बनाता है, टीचर ही डॉक्टर बनाता है. यू नो इट वेरी वेल. टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए इस पॉलिसी में काफी एम्फेसिस हुआ टीचर एजुकेशन का. दूसरा जो पॉलिसी बना हमारा, दूसरा पॉलिसी बना 1986 में. 1986 के अंदर जो पॉलिसी बनी, वो उसका आधार था टीचर एजुकेशन कमीशन 1, टीचर एजुकेशन कमीशन 2. टीचर एजुकेशन कमीशन 1 तो प्रोफेसर चट्टोपाध्याय स्कूल एजुकेशन का था. टीचर एजुकेशन कमीशन 2 1985 में प्रोफेसर रईस अहमद वो चेयरपर्सन थे हायर एजुकेशन के. वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के हेड भी थे, एनसीईआरटी के डायरेक्टर भी रहे, और वो फिर चेयरपर्सन इसके रहे. इसके बेस पे 1986 की पॉलिसी बनी. तो आप सब टीचर एजुकेटर हैं. 1986 की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? 1986 की पॉलिसी में कहा भाई टीचर एजुकेशन शुड बी ओवरहॉल्ड. अब पूरी तरह इसको जो है पुनर्विचार करके और इसका जो है हमें सुधार करना चाहिए. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसको आप सब जानते होंगे. वो इसमें पॉलिसी बनी, और उसके तहत क्या हुआ, बहुत सी स्कीम बनी, हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन. उसमें सबसे पहले बना भाई जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जैसी संस्था पूरे देश में होनी चाहिए. एनसीईआरटी इज ए रिसर्च एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन. तो ट्रेनिंग भी है वहाँ, प्री सर्विस भी है, इन सर्विस भी है. हमारे तो ये 2 ही होती है टीचर एजुकेशन में. तो इन्होंने कहा भाई एक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डाइट होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. तो देखिए 1986 in the light of Dr. Participants, please mute your mic. Participants, please mute your mic. Dr. Roy, प्लीज. तो उसके अंदर हर देखिए 1986 में पॉलिसी हुई, 1989 में पहली डाइट खुली, और सारे देश के अंदर डाइट. वो प्री सर्विस भी करती है, इन सर्विस भी करती है, और वो जो है एलिमेंट्री एजुकेशन की उनको जिम्मेवारी दी.
दूसरा उन्होंने कहा कि भाई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन होने चाहिए। अभी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी 5-6 डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, टीचर एजुकेशन। वो उसके अराउंड जितने भी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है उनको जो है सपोर्ट करे और इम्प्रूव करे। फिर एक इसका कंपोनेंट था IASC, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड एजुकेशन। वो हायर लेवल का था, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पे 11वीं-12वीं क्लास में उनके सबको टीचर को ट्रेनिंग देना, टू इम्प्रूव द मटेरियल, टू प्रिपेयर द मटेरियल, टू प्रमोट रिसर्चेज। ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के अंदर है। फिर इसके बाद ये कहा कि स्ट्रेंथन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को भी स्ट्रेंथन करना है। तो ये उसमें एक पी मोस्ट का प्रोग्राम था जो सारे इंडिया में NCERT की जिम्मेवारी दी, तो NCERT ने किया। सारे टीचर्स क्लास 1 से और 12 तक उनको ट्रेनिंग की, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, और वो आज तक चल रही है और आप सब पढ़ा रहे हैं, आप सब जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में यू आर वर्किंग। अब तो हमारा जो टीचर एजुकेशन का सिस्टम है वो टॉप टू बॉटम है, यानी ये स्कूल से लेकर के और सेंट्रल गवर्नमेंट तक, मींस NCERT, नीपा, जो सारी यूनिवर्सिटीज, सारी SCERT, सारी डाइट सब जुड़े हुए हैं। तो कोई भी हमें ट्रेनिंग करनी हो तो सारे देश में एक जगह से ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन का तो तरीका है ही, डाइट वाले डाइट बुलाते हैं, CT, ये सब। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात जो आज हम आप लोग बैठे हुए हैं, 1986 की पॉलिसी, वो है एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस। इस पॉलिसी ने कहा था भाई जो हमारे टीचर एजुकेटर हैं जो पढ़ा रहे हैं डिफरेंट इसमें, दूसरे फील्ड में पढ़ा रहे हैं, वो बार बार मिले, दे शुड मीट टाइम एंड अगेन, बार बार मिले, और उन जो नई नई डेवलपमेंट हो उन नई नई डेवलपमेंट के बारे में पार्टिसिपेशन हो, डिस्कशन हो, इंटरेक्शन हो, एक्सपीरियंस का शेयर हो। तो दिस वाज रिकमेंडेड बाय 1986 पॉलिसी, और फिर इसका बाद में नाम रखा गया HRDC, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, और लास्ट ईयर द गवर्नमेंट रीनेम्ड एज MMTC, मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर। नाउ दीज आर अबाउट 111 थ्रू आउट इंडिया। तो देखिए ये सब जो चीजें डेवलपमेंट हुई, ये जो पॉलिसी की वजह से हुई। और हम देखें अब 1950 और 2024 को कंपेयर करेंगे, यू विल फाइंड लॉट ऑफ चेंजेस इन टीचर एजुकेशन, चाहे वो प्री सर्विस है चाहे इन सर्विस है। इसके बाद फिर हमारा 1992 में पॉलिसी बनी, वो पॉलिसी नहीं थी, वो 86 को पॉलिसी को रिव्यू किया था। तो उसमें कहा कि भाई ये जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च इतनी इम्पोर्टेंट है, तो जो रिसर्च करते हैं टीचर एजुकेशन में ये फील्ड से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आप B.Ed करा रहे हैं, M.Ed करा रहे हैं, 4 ईयर 2 ईयर 1 ईयर ये सब चला, मगर हमारा जुड़ाव स्कूल के साथ होना चाहिए। ये 82 की पॉलिसी ने कहा स्कूल और टीचर एजुकेशन जो भी तैयार कर रहा है, चाहे वो CT है, ISC है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, ये क्लोजली होना चाहिए। क्योंकि जो स्कूल के अंदर हो रहा है वो टीचर एजुकेशन में होना चाहिए, टीचर एजुकेशन में हो रहा है स्कूल में होना चाहिए। तो सारी एक्टिविटीज जब मिलकर करेंगे, whatever development has taken place in both the places, we will prepare a good teacher, competent teacher, quality teacher। फिर देखते होंगे अगर आप स्कूल के अंदर जाएगा तो बहुत अच्छा पढ़ाएगा, अच्छा पढ़ाएगा तो बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, क्वालिटी के होंगे, फिर वो अच्छी अच्छी जगह पर काम करेंगे और हमारे देश का आगे जो बढ़ेगा। क्योंकि टीचर ही एक ऐसा है जो कि चाहे स्कूल में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे कॉलेज में हो, टीचर कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ life of people. Teacher can prepare the you can say a good professional, engineer, doctor, professor, all। अब फिर 2020 में हमारी तीसरी पॉलिसी आई आफ्टर 34 ईयर्स। आपने खूब डिस्कस किया होगा इसमें, जगह जगह कई सेमिनार, कई ओरिएंटेशन, कई आपने ऑर्गेनाइज किए हैं, जगह जगह सब बातें आप जानते हो। तो इस पॉलिसी का जो हमारे के कस्तूरी रंजन थे, इसरो के फॉर्मर चेयरपर्सन, ही वाज द चेयरपर्सन, और उनका विजन ये था कि भाई वी शुड अटेन द स्टेटस ऑफ ए विश्व गुरु ऑफ ग्लोबल लीडर। हम एंशिएंट इंडिया में हम ग्लोबल लीडर थे पूरे वर्ल्ड में,
सारे वर्ल्ड के लोग आते थे, तक्षशिला था, नालंदा था, उज्जैन था, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी फेमस, चाइना और बड़े बड़े जो कंट्रीज थे वेस्ट एशिया, सब लोग यहाँ आते थे, पढ़ते थे, तो हम बहुत आगे थे। तो इस पॉलिसी का था वी शुड अटेन द सेम स्टेटस एंड बिकम द ग्लोबल लीडर, हम दोबारा विश्व गुरु बने। तो इसके अंदर उन्होंने 6 पिलर बताए जो आपने बार बार डिस्कस किया होगा, विच आर वेरी रेलेवेंट फॉर द रिसर्च। जैसे कि पहला जो पिलर ऑफ दिस पॉलिसी है वो है एक्सेस। एक्सेस का मतलब ये है कि भाई सारे देश में कॉलेज और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो टीचर नहीं बन पाएंगे, आरटी का आपका जो है वो गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, जो लोग नहीं एजुकेशन ले पाए, मान लो नहीं टीचर बन पाए, ना रिसर्च कर पाए, ना उनको एजुकेशन मिल पाई, तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो तो डिसएडवांटेज पोजीशन में होंगे, पर सिंपली हमारा देश सफर करेगा। क्योंकि आप सब लोग जो काम करते हो अपने लिए और तो करते ही हो, अपने समाज के लिए करते हो, मगर अल्टीमेटली जो रिसर्च करते हो उसका बेनिफिट पूरे देश को होता है, तो अल्टीमेटली हमारा देश को फायदा होता है। तो जो लोग रह जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, डिप्राइव हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली कंट्री विल सफर। आप सोच कर देखिए, अल्टीमेटली और कंट्री विल सफर। तो इसलिए इस पॉलिसी ने कहा है जहां पे यूनिवर्सिटी नहीं है, जहां कॉलेज नहीं है, प्रायोरिटी बेस पे खोले जाएंगे और खोले जा रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा है इक्विटी। इक्विटी का मतलब डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में आपको पता है डिफरेंट सेक्शन है, रिलीजन है, कास्ट है, एथनिक ग्रुप, रीजन है, जोग्राफिकल सिचुएशन है, बहुत डाइवर्सिटी है, बड़ा डिफिकल्ट जो है टेरेन है समटाइम सम प्लेसेस। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई सभी को शिक्षा देनी है, सभी को शिक्षा दोगे तभी हमारा देश आगे होगा। तो अगर कुछ सेक्शन को देगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए दिस पॉलिसी एम्फसाइज दैट एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पर्टिकुलरली द हायर एजुकेशन। चाहे वह यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, जहाँ नहीं है वहाँ खोले जाए, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले जाए और सबको एजुकेशन दी जाए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और ये आप सबको मालूम है, हम और आप जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है और आज हमें बैठे हुए हैं सब लोग, दैट इज ड्यू टू दी एजुकेशन। आप देख लेंगे देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द इलिटरेट पर्सन एंड एजुकेटेड पर्सन। तो फिर इसके बाद तीसरा है क्वालिटी। हमें क्वालिटी लेवल की रिसर्च करनी चाहिए, क्वालिटी। अब देखिए, अब जब पीएचडी आप कराते हो या पीएचडी की होगी तो आपने देखा होगा अब भाई क्वालिटी की जो रिसर्च है उनको आप सेकंड चैप्टर में कोट करते हैं और ज्यादातर बाहर की रिसर्च करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल। तो हम भी ऐसी रिसर्च करें, सारे लोग हमारी रिसर्च टीचर एजुकेशन में ऐसी रिसर्च करें, अब बाहर के लोग हमें कोट करें, देखो ये दिस हैज बीन कंडक्टेड बाय सच एंड सच पर्सन ऑफ इंडिया फ्रॉम दिस प्लेस, दिस यूनिवर्सिटी। और जो चौथा है वो है अफोर्डेबिलिटी। एजुकेशन जो है सस्ती होनी चाहिए, जिसमें गरीब अमीर सब लोग जो है उसका फायदा उठा सकें और सब लोग पढ़ सकें। अफोर्डेबिलिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको मालूम है भाई, जब एजुकेशन सब लेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर कुछ महंगी एजुकेशन होगी तो कुछ ही लोग पढ़ेंगे, तो कुछ ही लोग पढ़ेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, तो आप हम पीछे रह जाएंगे दूसरे देशों की रेस में। तो ये इसके लिए मैं इसमें पॉलिसी में एम्फेसिस है, इसके लिए रेगुलेटरी बॉडी भी बनाई है, वो वाच करेगी प्राइवेट और पब्लिक स्कूल पे। अब जबलपुर का आपने 3-4 दिन पहले पढ़ा होगा, यानी करोड़ों रुपए सरकार ने वापस दिलाए हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा फीस कर दी थी, बहुत यूनिफॉर्म किताबें सब अपनी बेचते थे, गवर्नमेंट की नजर में आया, गवर्नमेंट ने उनको जो है एक्शन लिया और यानी 100 करोड़ या कितने करोड़ सभी जो है पेरेंट्स को वापस कराए। तो गवर्नमेंट वाच करेगी या अफोर्डेबिलिटी इस पे, अगर हायर एजुकेशन या टीचर एजुकेशन इतना महंगा नहीं हो, अगर कुछ लोग पढ़े कुछ ना पढ़े, तो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिर है बाद में अकाउंटेबिलिटी, हम सब इसके जिम्मेवार होने चाहिए। अब मैं हूँ, आप हैं, जो हम काम करें भाई मैंने किया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। कई बार को अच्छी पॉजिटिव बढ़िया फाइंडिंग होती है तो उसको तो कहते हैं मेरा है, और कोई खराब हो तो कह रहे मेरा नहीं है।
तो जो टीचर एजुकेशन का है सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है डॉक्टर जो प्रोफेसर नसरीन ने जो और डॉक्टर अब्बासी ने किया है, ये करते रहना चाहिए, क्योंकि टीचर एजुकेटर ही सबसे इम्पोर्टेंट है। टीचर एजुकेटर ही आपने जो है टीचर बनाते हैं और कुछ सारे कोर्सेज को चलाते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी दे हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड दे हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी। आई एम आल्सो टीचर एजुकेटर लाइक यू. So I worked throughout my life as a teacher educator in NCERT and tried to do some little work. So friend, we should have more and more researches in pre-service, more and more researches in service, because the quality of pre-service and in-service should be improved. We should conduct researches how to prepare a good curriculum for pre-service, how to prepare the different technique of assessment, how to prepare the good material of the theory papers, so how to conduct the quality of the internship. तो ये सारी जो प्री सर्विस की चीजें हैं, इन पे बार बार रिसर्च होती रहनी चाहिए। और आप देखेंगे जब आपने बीएड या वो एमएड किया होगा और आज में, यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस। टेक्नोलॉजी का कितना यूज हुआ, कैसे टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर रही है। ऐसे ही इन सर्विस में, इन सर्विस एजुकेशन सारे देश में, अब जैसे मैंने शुरू में बताया, यानी टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, स्कूल से लेकर के और नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन तक आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ट्रेनिंग की जा सकती है। अब हमारे ऑनलाइन मोड से हम कितना ही मटेरियल नेशनल इंटरनेशनल जगह से ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, अभी मैंने आपको रिसर्च के बारे में, टीचर एजुकेशन के रिसर्च में इतना जो है डिस्कशन किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये जो रिसर्चेज हैं, ये रिसर्च करने के लिए पैसा कहाँ से आए, फ्रॉम वेयर वी शुड ब्रिंग द फंड, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो फ्रेंड, देयर आर सो मेनी फंडिंग एजेंसी विच हेल्प यू पीपल टू गेट द मनी। आप इन सर्विस, प्री सर्विस में डिफरेंट इश्यूज के ऊपर कितना ही पैसा ले सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊंगा और फिर आपको लगेगा यस, ये जो रिसर्च की जो फंडिंग है, क्योंकि रिसर्च से बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। इट क्रिएट्स न्यू नॉलेज, क्रिएट न्यू मटेरियल, जनरेट न्यू कंसेप्ट, न्यू मटेरियल, न्यू मेथोडोलॉजी, और जो हम काम कर रहे हैं उससे हट से नया तरीका हमें मिलता है। अब बड़ी डेफिनेशन लोगों ने दी है, सभी लोगों ने, वो जो आप लोग रोज पढ़ा रहे हैं डिफरेंट अपने उसमें। अब रिसर्च फंडिंग की जो एजेंसी हैं, वो आपको पैसा देती है रिसर्च करने के लिए, और इसमें मैं एक एग्जांपल भी दूंगा जो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब जो फंडिंग एजेंसी होती है वो आपको रिसर्च करने के लिए एनकरेज करती है, मगर कुछ आपसे वो एमओयू साइन कराते हैं या कुछ एग्रीमेंट करते हैं। वो एग्रीमेंट कुछ नहीं होता है, वो एग्रीमेंट ये होता है कि भाई हम आपको पैसा देंगे और रिसर्च के लिए पैसा देंगे तो रिसर्च में ही यूज करना है। यू हैव टू यूज द मनी फॉर रिसर्च। कई जगह ऐसा होता है कि भाई रिसर्च का पैसा रिसर्च में यूज नहीं करते हैं तो वो जो है काम ठीक नहीं होता है और वो उसका यूटिलाइजेशन रिसर्च के लिए नहीं होता है। तो इसलिए वो आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी में चाहे आपका वाइस रजिस्ट्रार है, कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल है, तो उनसे एग्रीमेंट कराते हैं, फिर उसके थ्रू आपको पैसा दिया जाता है और आप रिसर्च कर सकते हैं। और ऐसी रिसर्च की बहुत सी एजेंसी हैं जो आपको पैसा देती हैं, आप लिख भी सकते हैं। एक गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सी एजेंसी हैं जो दे प्रोवाइड फंड फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च, गवर्नमेंट सेक्टर। दूसरा है प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर आपको बहुत पैसा देता है रिसर्च करने के लिए, सो मच ऑफ मनी। तीसरा है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। और चौथा है इंटरनेशनल सेक्टर। सो आई हैव कैटेगराइज्ड देम इनटू 4 सेक्टर: गवर्नमेंट सेक्टर, एनजीओ, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर एंड इंटरनेशनल सेक्टर। तो वो रिसर्च के डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए पैसा देते हैं आपको टू कंडक्ट रिसर्चेज एट नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे,
you can conduct the major research project. Of crores of rupees you can get and you can conduct the researches. दूसरा, आप माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट ले सकते हैं, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट. फिर आप कोलैबोरेटिव रिसर्च कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे एक यूनिवर्सिटी दूसरी कॉलेज आपस में मिलके, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ, अपने कंट्री से दूसरे, बहुत से आप में से कर रहे होंगे, तो कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट आल्सो देयर एंड दे प्रोवाइड फंड फॉर कंडक्टिंग दिस. फिर आपको सेमिनार करना हो, कॉन्फ्रेंस करनी हो, सिंपोजिया करना हो, वर्कशॉप करनी हो, यानी कोई भी एक्टिविटी करनी हो कैपेसिटी बिल्डिंग की, तो उसके लिए पैसा देते हैं. जैसे कि अब आप ये प्रोग्राम हो रहा है रिफ्रेशर कोर्स, इसके लिए भी पैसा फंड हुआ है यूजीसी से. तो ऐसे ही आप जो करेंगे तो यू विल आल्सो गेट द मनी. फिर आप मान लो कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा किया, यू हैव कंप्लीटेड सम रिसर्च प्रोजेक्ट, और रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा किया, या जो है आपने कोई और कोई पीएचडी का अच्छा जो है टॉपिक है, और उससे कोई मान जर्नल है, किसी जर्नल में छपवा सकते हैं आप, तो आपका नाम हमेशा रहता है. उसको भी फंड करते हैं, अच्छे जो आर्टिकल होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, दे प्रोवाइड फंड फॉर पब्लिशिंग. फिर ट्रैवल ग्रांट दी जाती है. अब नेशनल इंटरनेशनल उस पर यू कैन गो, एंड आप में से बहुत सौ ने ली होगी, बाहर देश में भी गए होंगे, यहाँ भी गए होंगे. यू विल गेट द ट्रैवल ग्रांट फॉर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार एटसेट्रा. फिर बहुत से स्कॉलरशिप हैं नेशनल इंटरनेशनल पीएचडी करने के लिए, या डिफरेंट प्रोजेक्ट करने के लिए, नाम अलग अलग दिए हुए हैं. बहुत से स्कॉलरशिप हैं, कई जगह इनको फेलोशिप भी कहते हैं. अब हमारे यहाँ JRF SRF, आपको पता ही ये सब बात है, तो ये फेलोशिप आपको मिल सकती है. फिर आपने कोई टीचर एजुकेशन में बहुत अच्छा जो है प्रोजेक्ट किया है, या कोई आर्टिकल लिखा, या कोई पीएचडी की थीसिस बहुत अच्छी लिखी, तो वो पब्लिश भी हो सकती है. तो पब्लिकेशन ग्रांट आल्सो यू कैन गेट इट, यू कैन गेट द पब्लिकेशन ग्रांट. तो पब्लिकेशन ग्रांट भी आपको मिलती है. और भी बहुत सी एक्टिविटी है जिसमें कि आपको यू कैन गेट द फंड फॉर पब्लिशिंग एंड फॉर अदर एक्टिविटीज. तो मेरा ये कहना है आपको, आप जो है रिसर्च करिए, पैसे की कमी नहीं है, कहीं से कहीं ने आपको पैसा जरूर मिल जाएगा. यू विल गेट द फंड फ्रॉम समवेयर एल्स. अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, और आप भी रिसर्च का प्रोजेक्ट लेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है मैंने एक प्रोग्राम किया, उसका सारा प्रोसेस बताऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा. और फिर आप भी उसी तरह अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रिसर्च के प्रोजेक्ट करेंगे टीचर एजुकेशन के. यू विल गेट द करोड़ ऑफ रुपीज. अभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी से, all I request all the 100% who are here, please write down the name of one ministry. Please write down the name of one ministry of Government of India. Government of India की एक एक मिनिस्ट्री सभी अपनी नोटबुक पर लिखें. प्लीज सभी लोग एक एक मिनिस्ट्री का नाम, भारत सरकार की मिनिस्ट्री का नाम अपने नोटबुक पे लिखें. प्लीज राइट डाउन. लिख लिया? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए एक एक सब. एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू टेल वन नेम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Please. Ministry of Education. The Home Ministry. Ministry of Education. Thank you. Yes. Ministry of External Affairs, Ministry of Finance, Home Ministry. Ministry of Defense, Yes. Ministry of Human Ministry of Finance. Right. Ministry of Finance. Ministry of Commerce. Department of Science. Ministry of Family yes. Affairs. Yes. Home Ministry. Yes. Human Rights Commission, Ministry of External Affairs, Yes. Ministry of Finance. Home Ministry, sir. Yes. अब मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूअल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसी ने लिखा है. सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. आप ये समझ रहे होंगे कि ये यादव साहब ने ये सवाल क्यों पूछा है, इससे क्या इसका तालमेल है. भाई दिस क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड. देखिए ये जो सवाल मैंने पूछा है ये आपको डायरेक्टली रिलेटेड है.
इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू यू। जितनी भी मिनिस्ट्री हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, रिसर्च के लिए सब पैसा देती है। ऑल मिनिस्ट्री प्रोवाइड फंड फॉर कंडक्टिंग द रिसर्चेस, यू कैन गेट द ह्यूज अमाउंट फ्रॉम मिनिस्ट्री। और यहाँ पे उनका एक वाया मीडिया है, उनका वेबसाइट है, जिसका जो एरिया है, किसी का जो है हेल्थ है, किसी का एजुकेशन है, किसी का जो है क्या नाम है उसका, आयुष का है, एग्रीकल्चर का है, सोशल जस्टिस का है, मतलब वाटर रिसोर्स, यानी जितनी भी मिनिस्ट्री आपने बताई है, सब मिनिस्ट्री में पैसे का प्रोविजन है, रिसर्च कराते हैं, रिसर्च के लिए पैसा देते हैं और करोड़ ऑफ रुपीस देते हैं। हर एक मिनिस्ट्री में जिसका जो एरिया है उस मिनिस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट देखिए मिनिस्ट्री की, और वेबसाइट देखने के बाद आपको पता लगेगा यहाँ एक बॉडी है, वो रिसर्च के लिए पैसा देती है, वो मिलती है, और जो है सारे देश में आप जैसे रिसर्चर को पैसा दे रही है। जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी 1950 से पैसा दे रही है, जब से हमारी सरकार बनी है, तो तभी से रिसर्च के लिए है। अब पहले तो आहिस्ता आहिस्ता इतना डेवलपमेंट हुआ। आज ह्यूज अमाउंट in every field is being provided to all the faculty who are working in the teacher education in India. So मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आप आराम से पैसा ले सकोगी। मैं भी आपकी तरह, जैसे मैंने बताया, आई एम आल्सो ए टीचर एजुकेटर लाइक यू, तो मैं भी जो है रिसर्च थोड़ा थोड़ा करता रहा। तो मैंने ये देखा अभी जो है रिसर्च के लिए मिनिस्ट्री से पैसा कैसे लिया जाए और फिर सबको कैसे बताया जाए, अब वो भी फिर मेरी तरह पैसा लें। तो ये जो है एक बड़ा आसान सा तरीका मिला मेरे को। अब मेरे को किसी ने बताया तो मैंने उसको ट्राई किया। एक एसएसए का प्रोजेक्ट होता था, एसएसए का प्रोजेक्ट होता था, सर्व शिक्षा अभियान, आप सब जानते होंगे। उसका मकसद था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। भाई 1 से 8वीं क्लास को कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, सब मिनिस्ट्री के अंदर फ्लैगशिप स्कीम है। आप अपना जो है उनकी स्कीम है, और वो अपना जो उनका एरिया है उसको प्रमोट करते हैं, उसके लिए बनाते हैं, और वो आपसे रिसर्च के लिए पैसा देते हैं, रिसर्च भी करवा लेते हैं। तो एसएसए का प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने बनाया 2000 में, मगर ये अब ये हो गए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन द लाइट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी 2020। अब उसमें का रिजल्ट क्या हुआ, अब भाई हमें 1 से 8वीं जो एलिमेंट्री का है उसका क्वालिटी इंप्रूव होना चाहिए। उसके लिए जो भी कमी है देश के अंदर, तो वो कमी के लिए भारत सरकार पैसा देगी, तो वो कंकरेंट लिस्ट में है आजकल। तो उन्होंने कहा भाई सब अपने प्लान बना के लाओ, जितने भी 36 स्टेट्स यूटी है सब प्लान बना के लाओ, और अपनी रिक्वायरमेंट पूरे अपने स्टेट के लाओ, और यहाँ पर डिस्कस करो, और फिर जिसमें जो कमी होगी उसका हम पैसा दें। कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं टीचर नहीं है, कहीं किताबें नहीं है, कहीं यूनिफॉर्म नहीं, लाइक दैट। तो उन्होंने फिर जो है प्लान बना के लाए, और वो भारत सरकार पैसा देने लगी। तो उसमें एक कंपोनेंट ये भी था, अब भाई जो है टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए रेगुलर, टीचर ट्रेनिंग शुड बी कंडक्टेड रेगुलर बेसिस। तो उन्होंने टीचर ट्रेनिंग का एक 20 दिन का प्रोविजन रखा। 2000 में प्रोग्राम हुआ, 2000 से यानी हर साल हर टीचर को 20 दिन की ट्रेनिंग कंपलसरी थी एज पर देयर रिक्वायरमेंट। व्हाट हैपेंस, so 20 days training for all the teacher everywhere in their own requirement with the indoor you can say in different subject was conducted throughout India। अब आपको मालूम होगा हमारे 1 से 8वीं क्लास से जो टीचर पढ़ाते हैं, these are more than 40 lakh। अब 40 लाख टीचर हर साल ट्रेनिंग ले रहे हैं, 20 साल की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग। आप लगाइए कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो हमने 2010 में जब व्हेन आई वाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन एनसीईआरटी, तो हमने सोचा कि इसका जरा इम्पैक्ट देखते हैं। अगर भाई ये टीचर को फायदा हुआ, को कॉम्पिटेंसी बढ़ी, बच्चों की को कॉम्पिटेंसी बढ़ी, कोई अच्छी तरह का मटेरियल ट्रेनिंग का हुआ, देखें क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग हो रही है, वो कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरह के रिसोर्स पर्सन है, जरा देखे तो सही। तो हमने एक प्रपोजल बनाया, और उस प्रपोजल में हमने कहा अब भाई ये सारे कंपोनेंट जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वी हैव इंक्लूडेड इन द रिसर्च प्रपोजल।
और वो रिसर्च प्रपोजल हमारे 15 स्टेट का, जैसे वे प्रोफेसर नसरीन ने बताया था मेरे इंट्रोडक्शन में, वो 15 स्टेट के अंदर हमने किया। 200 लोग हम उसमें हमने प्रपोज किए। अगर 15 प्रोफेसर हेड होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, जो इसमें स्टेट कोऑर्डिनेटर होंगे हमारे साथ, उनको हमें 20-20, 30 रिसर्चर दे दिए। तो इतनी मैन पावर थी। और इसके अंदर क्या टोटल हमारा एक्सपेंडिचर होगा डिफरेंट प्रोग्राम करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए, टूल डेवलप करने के लिए, एडवाइजरी बॉडी करने के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, उनका टीए डीए, रिपोर्ट राइटिंग के लिए, सारा कुछ हमने डिटेल दिया प्रपोजल में वो। और उसका टोटल एक्सपेंडिचर हमने टोटल कॉस्ट रखी आई 2 करोड़ रुपीस। तो ये हमने बनाया। हमने मिनिस्ट्री में देखा एक बॉडी होती है CARP, यू मे राइट इट, CARP, कमेटी फॉर अप्रूवल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, CARP, कमेटी फॉर अप्रूवल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। तो इस बॉडी में ये सारे देश से प्रोजेक्ट जो है कोई भी भेज सकता है, आप भी भेज सकते हैं, कोई भी भेज सकता है। और फिर ये प्रोजेक्ट जब इकट्ठे हो जाते हैं थोड़े ज़्यादा, 10-20 प्रोजेक्ट हो जाते हैं, तो मिनिस्ट्री इसकी मीटिंग करती है CARP की, और मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होता है वो चेयर करता है। अबाउट 20 रिसर्चर प्रोफेसर जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री के, वो इसके मेंबर होते हैं। फिर उनको सबको बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद फिर वो मीटिंग होती है, और आपको भी बुलाया जाता है, और आपको कहते हैं प्रेजेंटेशन करिए। तो हमें भी बुलाया NCERT से, और हमारे से कहा भी आप प्रेजेंट करिए। तो हमने प्रेजेंट किया। तो हमने बताया कि वी वांटेड टू डू दिस थिंग, वी वांट टू सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, हाउ इट हैज improved the quality of our elementary education, how it has improved the performance of student, how it has improved the competency of teacher, how it has helped the you can say community, what type material has been developed, where the training was conducted, what were the facilities in the training center, what type of resource person were there, how the course director organized the program. ये सारी चीजें हमने इसमें रखी थी प्रोग्राम में। तो उन्होंने हमारे से पूछा, हमने बताया, तो they were satisfied, so they approved our project in 2010। ये 2 साल का प्रोजेक्ट हमने रखा था। तो हमने अपने प्रपोजल में पहले दिन से और 2 साल के लास्ट दिन तक हमने उसमें पूरा दिया हुआ था डिटेल। पहले दिन ये करेंगे, दूसरे दिन ये करेंगे, तीसरे दिन ये करेंगे, चौथे दिन ये करेंगे, मंथ ऐसे पूरा 2 साल। और फिर वो हम प्रोग्रेस मिनिस्ट्री को भेजते रहते थे, और मिनिस्ट्री हमें पैसा देती रहती थी। तो उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए, और उसमें जो है हमारे कुछ 5-10 लाख ज्यादा खर्च हुए। तो हमने मिनिस्ट्री को बता दिया, अब भाई ये जो है ये एक्टिविटी हुई, इसमें ज्यादा पैसा खर्च हो गया। तो मिनिस्ट्री ने जो है वो 10 लाख रुपए भी दे दिए। अगर मिनिस्ट्री ये यानी कोई भी फंडिंग एजेंसी हो, वो ये सेटिस्फाइड हो काम रिसर्च के लिए हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, तो वो पैसा आपको दे देते हैं। अगर ज्यादा खर्च हुआ, अगर कम खर्च हुआ, तो फिर फंडिंग एजेंसी को जितना पैसा बच जाता है वो वापिस करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमने 2012 में स्टडी अप्रूव कर दी, पूरी कर दी। और हमने मिनिस्ट्री को जो है सारे जितने भी उनके थे ऑफिसर्स, उन्होंने बुलाए, हम उनके सामने प्रेजेंट की, और दे वर सेटिस्फाइड, दे वर हैप्पी। तो इसलिए उन्होंने मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे डाल दी, और जो है NCERT की वेबसाइट पे, और सारे देश में जो है यूज होने लगी। और इसमें आपको दिखा देता हूँ, ये पहला वॉल्यूम था, ये कंसोलिडेटेड वॉल्यूम, इसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग ऑन क्लासरूम ट्रांजैक्शन। कंसोलिडेटेड सारा कैसे प्रोसीजर किया, क्या फाइंडिंग हुई, कैसे एनालिसिस किया। तो ये जो है हमने पहला वॉल्यूम बनाया। और दूसरा वॉल्यूम किस तरह का मटेरियल ऐसा से पैकेज, मतलब जो सारे देश में पैकेज हुआ, वो पैकेज हमने इसमें सेलेक्टिव लिए, और किस तरह का हुआ वो प्रोटोटाइप मटेरियल दूसरे उसमें है। और जो तीसरा कहाँ का ट्रेनिंग सेंटर थे, जो मैंने बातें कही, कैसे थे, क्या किया था, कैसे रिसोर्स पर्सन थे, क्या इक्विपमेंट थे, क्या फैसिलिटी थी, वो जो है पूरे जो 15 स्टेट का है। और जो चौथा जो है आपके लिए बड़ा रेलेवेंट है, ये है इनसेट टूल किट। तो इसके अंदर 15 टूल हैं, ये जो चौथा वॉल्यूम है। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है, ये जो स्टडी है
ये उस पे वेबसाइट पे है, आप इसको यूज कर सकते हैं, टूल को यूज कर सकते हैं। टूल ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप इनको अडेप्ट कर सकते हैं, अडोप्ट भी कर सकते हैं। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ओपन गूगल, प्लीज ओपन गूगल। सभी लोग गूगल खोलेंगे, एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू ओपन गूगल। खोल लिया, ओपन कर लिया डॉक्टर मनोज कुमार? Yes, sir. ओके, अब गूगल के ऊपर लिखेंगे आप NCERT, NCERT, Yes, sir. NCERT के बाद स्पेस दो थोड़ा सा, गिव सम स्पेस। Okay. दे दिया? Yes, sir. अब मेरा नाम लिखो इस पे, SK यादव, SK यादव। अब इसे लॉगिन करो, लॉगिन। क्या आया बताइए? सर आपका बायोडेटा आ रहा है। इसमें आया होगा इंसेट टूलकिट लिखकर आ रहा है। टूलकिट सर, टूलकिट आ रहा है। इंसर्ट टूलकिट। अच्छा बस इसके बाद छोड़ो, बाकी चीजें तो वो दूसरी है, बाद में देख लेना। इंसेट इसमें क्या आएगा? हाँ बस यही तक, ये इसको बंद कर दीजिए आप। इसी तो मैंने आपको इसलिए क्या, इजीली आप ये 15 टूल का प्रयोग कर सकते हैं। ये इंसर्ट टूल को, ये हमारा चौथा वॉल्यूम है। ये आराम से इन टूल को आपको रिसर्च करानी हो, PhD करानी हो, प्रोजेक्ट कराना हो, आप इनमें क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, ट्रेनिंग सब टूल हैं। जो आपको यूज करना हो आराम से कर लेना। उसको कोई मान लो आइटम चेंज करना हो, कुछ भी करना हो तो यू कैन डू इट। मगर जब आप स्टडी पूरी हो जाए तो एक्नॉलेज कर देना। हम तो NCERT के व्यक्ति हैं, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा काम है रिसर्च को एनकरेज करना। हमारा काम कोई बिजनेस वाला काम नहीं है। तो इसलिए हम चीजें बड़ी सस्ती, बड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राई करते हैं सारे देश में, जिससे कि लोगों को बेनिफिट हो। हाँ, अगर आपको किसी को ये प्रिंटेड वॉल्यूम चाहिए, एक तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने यहाँ। दूसरा, अगर प्रिंटेड चाहिए सिर्फ 1000 रुपए के अंदर ये NCERT से आ सकती है। चारों वॉल्यूम आपके घर पे पहुंच सकते हैं, ये चारों वॉल्यूम। तो ये इसके अंदर एड्रेस भी दिया हुआ है। इंसेट टूल किट के पीछे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट की संस्था है, इसलिए नहीं बाहर तो ये आपको 10-20 हजार रुपए में मिलते। तो 1000 में 4 वॉल्यूम आ जाएंगे और आप उनको यूज कर सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल हो, आप इसमें एक बात तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये मत सोचना कि ये मैंने किया है तो मैं अपनी पब्लिसिटी के लिए करता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक, क्योंकि मैंने किया था तो एक प्रोसेस के बारे में जानकारी दी है। तो अभी मैं ना मेरे को ग्लोरिफिकेशन चाहिए, ना मुझे प्रेज चाहिए, ना मैं नौकरी के अंदर हूँ जहाँ मुझे कोई फायदा हो रहा हो। पर मेरा सिंपली काम ये है कि भाई जो ये काम है आप इसे यूज करें जो आपकी नॉलेज में हो। तो सिंपली मेरा काम था, ये प्रोसेस में मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और मैं इस प्रोसेस को बड़े सिंपल वे में बताया। तो आप भी कोई प्रोजेक्ट लेके यू कैन आल्सो टेक अप एंड यू कैन आल्सो गेट द फंड एंड कंडक्ट द मेजर रिसर्चेज। अगर आपका किसी का सवाल हो, ये नीतू गुप्ता हाथ उठा रही है, हिमांशु कुमार आल्सो रेज्ड हैंड। बताइए क्या बात है, किसी का कोई सवाल हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर वो स्टार्टिंग में हैंड रेज किया था और जस्ट पूछना चाह रही थी कि कौन कौन सी फंडिंग एजेंसीज हैं, लेकिन आपने बता ही दिया सर से वो। हाँ, फंडिंग एजेंसी मैं आपको इतनी बताऊंगा, आप भी बता रहा हूँ, मेरे पास तो काफी टाइम है। अगर वो आप जो है उनको यूज करें, बताने का मतलब अलग है, वो यूज करेंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। और मैं सर ह्यूमैनिटीज में हम किसके लिए कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा कुछ बताइएगा। हाँ, ये जितने भी मैं और आगे बताऊंगा वो सब जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मिनिस्ट्री, जितनी भी मिनिस्ट्रीज है जो आपका एरिया है वहाँ पे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत मिनिस्ट्री ही सबको पैसा देती है। जैसे UGC है, आप UGC को जानते हैं सब लोग, UGC मिनिस्ट्री के अंडर है। UGC को फिक्स्ड मनी देती है हर साल, सारे इंडिया के लोग अप्लाई करते थे, पैसा खत्म हो जाता है। तो इसलिए आप मिनिस्ट्री से लो डायरेक्टली। किसी का एग्रीकल्चर का एरिया है, किसी का जो है हेल्थ का है, किसी का एजुकेशन का है, किसी का सोशल जस्टिस का, तो आप वहाँ करो। बड़े बड़े रिसर्च मिनिस्ट्री भी बड़ी खुश हो जाएगी। तो एनीवे,
तो जितने भी मेरे ख्याल ऐसी स्टेट मिनिस्ट्री को भी एक्सप्लोर करके देख लिया करो। अब जहाँ जहाँ स्टेट में है वहाँ भी ऐसी मिनिस्ट्री है, वो भी सब पैसा देती है। अब इसके अलावा फिर नीति आयोग है एक, आपको बताता हूँ मैं। नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन होता था, तो नीति आयोग के हमारे नीति आयोग के जो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं वो इसको चेयर करते हैं, और इसमें बड़े बड़े रिसर्चर, एडवाइजर, ये सब लोग होते हैं। तो ये लोग जो है सब मिनिस्ट्री को एडवाइज करते हैं। तो वहाँ पे भी आप डायरेक्टली अपने फील्ड के अंदर रिसर्च के लिए पैसा आप दे सकते हैं। जितनी भी एक्टिविटी मैंने बताई, प्रोजेक्ट हैं, सेमिनार हैं, पब्लिकेशन है, सब अच्छी हैं, तो वहाँ पैसा आपको देते हैं। और वहाँ पे एक जर्नल छपता है, योजना, यू मे राइट डाउन, योजना। तो योजना जो जर्नल है, योजना जर्नल, वो आपके आर्टिकल को या आपके रिसर्च पेपर को छापता है, और जितने भी नीति आयोग में बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं वो उनको पढ़ते हैं, और डिफरेंट पॉलिसी, डिफरेंट मिनिस्टर आते हैं, वो उनके काम आता है, और ये आपको ऑनरेरियम भी देते हैं। ये सबसे बड़ा जर्नल है कंट्री का, योजना, नाम ही योजना है, डिफरेंट मिनिस्ट्री के नाम से योजना बनाते हैं। तो वो देख लेना वेबसाइट पे, नीति आयोग पे, आपको पैसा देते हैं। ऐसे ही कुरुक्षेत्र मैगजीन, वो रूरल डेवलपमेंट के लिए है, वो भी नीति आयोग जो है इस पर, जब कुरुक्षेत्र मैगजीन गूगल पे करेंगे सारा एड्रेस आ जाएगा। वो 5,000 रुपये हर एक कंट्रीब्यूटर को देते हैं, जो भी आर्टिकल छापेगा उसको 5,000 रुपये का जो है वो ऑनरेरियम देते हैं। और आपका जो आर्टिकल है वो बहुत कम, और वो भेजा जाता है नीति आयोग में, नीति आयोग उसको पढ़ता है, पॉलिसी बनाते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो इसलिए आप इसमें योजना में कुरुक्षेत्र मैगजीन डिफरेंट लैंग्वेज में निकलती है, तो ट्राई टू कंट्रीब्यूट। ये जितने बड़े जर्नल है कंट्री के, बड़े लोग पढ़ते हैं, इवन बहुत अच्छा आर्टिकल होता है वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी पढ़ता है, क्योंकि पॉलिसीज बनती है वहाँ पे। तो देयर यू कैन डू। ऐसे ही जितने भी बैंक हैं, जैसे अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये पॉलिसी बनाते हैं, अखबार में आप पढ़ते रहते रोज, इकोनॉमिक पॉलिसी, कभी जो है जीडीपी ऊपर हो गया, कभी डाउन हो गया। ये ऐसे नहीं होते हैं, वो रिसर्च कराते हैं आप लोगों से, उसके बेस पे जो है सब चीज़ें होती है। तो वहाँ से आप डायरेक्ट आरबीआई से लो, और बैंक है वो भी आपको देते हैं जब उनसे बात करेंगे। तो ऐसे ही फिर इसके बाद जो डिफरेंट ये हर जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्रीज के अंदर नेशनल बॉडी होती है, बहुत नेशनल बॉडी, तो वो सारी नेशनल बॉडी जो है पैसा देती है मिनिस्ट्री के अंदर। जैसे कि हमारी ये है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो मिनिस्ट्री एजुकेशन के लिए बहुत सी नेशनल फंडिंग है। जैसे एक तो आप जानते ही हो यूजीसी, अब यूजीसी जो है को सब जानते हो आप लोग, और यूजीसी से पैसा आप में से बहुत सुने लिया भी होगा रिसर्च के लिए, और बहुत सी स्कीम है यूजीसी के अंदर। आप उनकी वेबसाइट खोल के देख लो, आपको पता, मैंने बताया 1956 में बनी, और ये इसकी जो है रीजनल सेंटर है पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद और गुवाहाटी वगैरह में। तो यू कैन अप्लाई अपने नियरेस्ट सेंटर से। मेजर माइनर प्रोजेक्ट सभी में पैसा देते हैं, और बहुत सी स्कीमें फैकल्टी डेवलपमेंट की है, इंटर इंस्टीट्यूशन है, वो जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें पता लगेगी। फिर एमरेटस फेलोशिप है, पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड है, जूनियर फेलोशिप, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, मौलाना आज़ाद फेलोशिप, DS कोठारी फेलोशिप फॉर साइंस मेडिकल इंजीनियर। सो जी, फिर ऐसे ही जो हमारे कॉलेज के साथी हैं, वो कई बार सोचते हैं कि जो कॉलेज के हमारे दोस्त हैं जी, जो कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पढ़ाते हैं, तो वो कई बार सोचते हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में पढ़ाते हैं उनको पहले प्रेफरेंस मिल जाती है और हम रह जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कॉलेज के लिए अलग से एक स्कीम बना दी, उसमें तो अप्लाई कर ही सकते हैं यूजीसी में सभी स्कीमों में, मगर अलग से बना दी, उसको नाम है ब्लॉक ग्रांट टू कॉलेजेस, ब्लॉक ग्रांट टू कॉलेजेस। तो इसके अंदर ब्लॉक ग्रांट टू कॉलेजेस का देखेंगे तो उसमें माइनर प्रोजेक्ट, सेमिनार करने के लिए ट्रैवल ग्रांट, टीचर फेलोशिप, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द टीचर। तो मतलब आपको यू कैन अप्लाई सेपरेटली, तो वहाँ ओनली कॉलेज फैकल्टी के लिए है। ऐसे ही प्रोजेक्ट आते रहते हैं यूजीसी में, उनको अप्लाई करिए।
जैसे स्ट्राइड का प्रोजेक्ट आया था, तो इसमें बहुत से लोग जो कंट्री में कर रहे हैं। फिर एक रिसर्च के लिए है, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने टीचर एजुकेशन में, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बने टीचर एजुकेशन में, फिर प्रोफेसर बने, मैंने इनिशियल लेवल पे, मिडिल लेवल पे और फिर सीनियर लेवल पे, तीनों लेवल पे आपको एक फैकल्टी रिसर्च प्रमोशन स्कीम है यूजीसी की, फैकल्टी रिसर्च प्रमोशन स्कीम। तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, फैकल्टी रिसर्च प्रमोशन स्कीम, जो तीनों लेवल पे है। फिर ऐसे ही जो हमारे इम्पोर्टेंट ओकेजन है, जैसे राधा कृष्णन जी का बर्थडे हम मनाते हैं 5 सितंबर, ऐसी बहुत स्कीम अनाउंस कर देती है। 2022 में 5 सितंबर को उन्होंने कहा अभी जिनके एक लड़की है वो पीएचडी लेवल तक उसको पैसा मिलेगा, शी विल गेट द मनी टू कंप्लीट पीएचडी। तो वो जो यूजीसी का जो है उसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड सावित्री ज्योति राव फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो वो ले रहे हैं लोग। ऐसे ही जो है इसके बाद फिर जो हमारे बड़े बड़े रिसर्चर हैं वो रिटायरमेंट इज फिक्स, तो वो उनके लिए भी एक स्कीम निकाल दी थी 2022 में। तो वो भी हमारे रिसर्चर काम कर रहे हैं, कोई फिजिक्स में, कोई साइंस में, कोई सोशल साइंस में, कोई लैंग्वेज में। फिर इन सर्विस में जैसे आप लोग हैं तो इनके लिए भी एक अलग से स्कीम निकाली। फिर इसके बाद उन्होंने जो है डॉक्टर डीएस कोठारी रिसर्च ग्रांट न्यूली, नए जो बच्चे टीचर एजुकेशन में लगे हैं तो उनके लिए भी लगाया 132 फेलोशिप, 10 लाख रुपए उनको 2 साल के लिए प्रोविजन है इस स्कीम में। फिर यूजीसी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप है, यूजीसी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप है, उसके 900 सीट निकाली, एडिशनल है पीडीएफ मगर ये एडिशनल निकाल दी। तो ऐसे बहुत सी स्कीम आप देखते रहा करो तो आपको उसमें यूटिलाइजेशन और उसको बेनिफिट होगा। फिर ऐसे ही हमारा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल बॉडी है, वो सब टेक्निकल और इंजीनियरिंग में जो है पैसा देती है। फिर ऐसे ही एक 5-6 बॉडी में आपको बताता हूँ, बाकी आप देख लीजिए वो। फिर काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इट आल्सो प्रोवाइड फंड फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च। फिर इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज है, आप डिफरेंट लैंग्वेज के भी लोग होंगे यहाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट है, मैसूर के अंदर है, हर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए रिसर्च में पैसा देते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज एट मैसूर, सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इट वाज सेट अप इन 1969। तो देयर यू कैन सी एंड यू कैन गेट द मनी। देन इसके बाद फिर और जैसे डीआरडीओ है, फॉर एग्जांपल डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इट आल्सो प्रोवाइड फंड फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च। Then Department of Atomic Energy, it is also a national body for those who are working in the energy, atomic energy, they can get the fund, nuclear science, etc. Then Department of Biotechnology, you know it very well, you can get the fund for all the activities. Department of Coal is also a national body, you can get the fund. Then Department of Ocean Development, it is also a body. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई होप समबॉडी विल बी टेकिंग मनी फ्रॉम इट, इसमें कोई प्रोजेक्ट के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यू माइट हैव डेफिनेटली टेकन, समबॉडी इज यूटिलाइजिंग, दोज हु हैव नॉट टेकन दे शुड अप्लाई। देयर आर सम फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ द हिस्ट्री, तो हिस्टोरिकल रिसर्च करके तो आप इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च से भी पैसा ले सकते। फिर इंटरडिसिप्लिनरी, अगर आपको मान लें 2 डिसिप्लिन से है, 2 डिसिप्लिन लेकर कहीं से भी पैसा ले सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, यू नो इट वेरी वेल, इट आल्सो प्रोवाइड फंड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। और अभी भारत सरकार ने इसको कहा अभी हमारी 31 स्कीम है, इनका पर रिसर्च कराओ, रिसर्चर को दो, तो उन्होंने जुलाई में अनाउंस किया और सारे देश में बहुत से आप जैसे फैकल्टी उन्होंने रिसर्च के प्रोजेक्ट लिए। उनकी 31 स्कीम है, वो देखना चाह रहे थे लोगों को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे कि स्वच्छ भारत है अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्टैंड अप इंडिया है, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। दे वांटेड टू सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉलिसी ऑन द people of the country, are they benefiting or not benefiting, so many person have taken the project and these projects are undergoing. तो आप थोड़ा सा open your eyes and ears and then use it.
फिर ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत है, देयर आर सो मेनी। फिर हम दूसरे सेक्टर में चलते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। देखिए जितनी भी इंडस्ट्री है इंडिया में, और इंडस्ट्री चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, सब रिसर्च कराती है, ऑल इंडस्ट्री। वहां पे एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेल होता है, देयर इज वन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल, वो रिसर्च कराता है अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कराने के लिए। अब बहुत सी इंडस्ट्री हेल्थ में है, एजुकेशन में है, तरह तरह की इंडस्ट्री है, और या आपको पैसा दे देते हैं भाई आप हमारे प्रोडक्ट रिलीज कर दीजिए, और इनको सोशल वेलफेयर के लिए पैसा भी रखना पड़ता है, एजुकेशन के लिए सभी को, तभी इनको जो है वो फैक्ट्री के लैंड और ये सब कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। तो जितनी भी इंडस्ट्री है इंडिया में वो सब रिसर्च कराती है, रिसर्च के लिए पैसा देती है, आप उनको यूज करिए। तो चाहे वो टाटा कंपनी हो, चाहे हीरो होंडा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे फार्मेसी हो, 1000 ऑफ द कंपनीज ऑल आर प्रोवाइडिंग फंड। ऐसे ही फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर सब रिसर्च करते हैं, जितने भी कॉर्पोरेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ऑल आर डूइंग रिसर्च, उनके साथ मिलकर रिसर्च करिए। तो देखिए दोनों को फायदा होगा, आपका कंपनी को फायदा होगा, आपको यूनिवर्सिटी को फायदा होगा, फैकल्टी को फायदा होगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, जर्नल निकालेंगे, जर्नल में पेपर छापेंगे, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, तो कितना फायदा होगा, दोनों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में। ऐसे ही हमारे एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, हमारे पास बहुत एनजीओ हैं देश के अंदर, 31 लाख से ज्यादा एनजीओ नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। जब इनका जो है एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड भी करती है फाइनेंशियल, उनको जो है अपने भी जो है इनके सोर्सेज होते हैं। तो एनजीओ कंडक्ट रिसर्चेज इन एजुकेशन, तो आप टीचर एजुकेशन, तो आप एनजीओ के साथ मिलकर कर लीजिए। एनजीओ नेशनल लेवल के भी है, इंटरनेशनल लेवल के भी है, हर फील्ड के अंदर जो पैसा देते हैं एनजीओ। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल के एक दो का नाम मैं आपको बताते हैं जो पैसा आपको देते हैं, और बहुत से इंटरनेशनल है, जैसे आगा खान फाउंडेशन है, ये स्विट्जरलैंड का है, इसका ब्रांच हमारे इंडिया में भी है, तो ये हमारे इंडिया को भी पैसा देता है। हमारे बहुत से लोग इससे जुड़े हुए हैं और टीचर एजुकेशन में भी रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमारा एब्लिश फाउंडेशन है, इट इज आल्सो इंटरनेशनल, तो एब्लिश फाउंडेशन में प्रोजेक्ट हैं और जो है जितने भी एक्टिविटी है वो हमारे कंट्री में भी हैं, कराते हैं, और ये जो है आप कर सकते हैं। ऐसे ही दिस इज आल्सो अनदर एनजीओ। देन मेक ए डिफरेंस इज आल्सो एनजीओ। Then Center for Peace Education is also NGO. प्रथम आपको पता है कि हर साल अचीवमेंट सर्वे करता है पूरे कंट्री का, और वो बताता है कि कितने बच्चों को आता है कितना नहीं आता है, आप अखबार में पढ़ते होंगे जरूर। और अक्षय पात्रा फाउंडेशन, इट इज आल्सो एनजीओ। आकांक्षा फाउंडेशन इज आल्सो एनजीओ। चाइल्ड राइट एंड यू मीन कराई इज आल्सो। सेव द चिल्ड्रन also NGO. Bachpan Bachao Andolan is also NGO, and Kailash Satyarthi ji is running this. He started work in 1988 in Madhya Pradesh. He saved the children from the child labor, human trafficking, and other injustice caused to them, and then put them in the education sector. So his work came in the notice at international level. He got the Nobel Prize. ही इज ए नोबल laureate, आप में से जानते होंगे बहुत से लोग। तो ऐसे आप काम करें तो यू विल अंधेरी हिल्फे बोन, अशोका इनोवेटर फॉर पब्लिक, एसोसिएशन ऑफ इंडियन डेवलपमेंट, चैरिटेबल फाउंडेशन, टीच फॉर इंडिया। So whatever I want to say to you, so many NGOs are there, more than 31 lakh NGOs. They are working. You are also working in the field education. Why don't you work in collaborative basis? If you will work in collaboration, तो आपको resources, हम भी एजुकेशन में काम कर रहे हैं, ये भी एजुकेशन में काम कर रहे हैं, ये भी रिसर्च कर रहे हैं, हम भी रिसर्च कर रहे हैं। अगर मिलकर करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, हमारे पास फंड ज़्यादा होगा,
हमारे पास जो है काम करने का समय भी ज्यादा होगा, क्योंकि एनजीओ में हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो एनजीओ में हम अपने हिसाब से उनके साथ एडजस्ट कर लेंगे। संडे है, सैटरडे है, बिफोर दी कॉलेज या यूनिवर्सिटी टाइम, आफ्टर द कॉलेज या यूनिवर्सिटी टाइम, छुट्टी वाले दिन है, तो एनजीओ के साथ मिलके आप आराम से, और इनके अंदर ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में जो बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते हैं, तो आप इनके साथ मिलके भी कर सकते हैं। फिर हमारा आता है इंटरनेशनल सेक्टर। तो इंटरनेशनल सेक्टर में भी सभी जगह पैसा मिलता है, एवरीवेयर यू विल गेट द मनी। जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू होल ऑफ द वर्ल्ड, होल ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग आवर कंट्री। एक प्रोजेक्ट आया था डीपीपी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट प्राइमरी एजुकेशन के लिए आया था 1994 में, जिसमें मुझे भी मौका मिला काम करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट लिया था, ये सारे वर्ल्ड को सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी एक इंटरनेशनल एजेंसी है। एशियन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज आल्सो देयर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज देयर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, फोर्ड फाउंडेशन इज देयर, यूनेस्को, यू नो इट वेरी वेल, एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ, यू नो इट वेरी वेल। तो देर आर सो मैनी funding agency at international level. I have shared few. You can see on website in Google, you will find and you apply and you conduct the researches. फिर इसके बाद जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो समय समय पे फेलोशिप स्कॉलरशिप निकालती रहती है, फेलोशिप और ये निकालती रहती है, और आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और वो कॉमनवेल्थ फेलोशिप है जैसी निकलती रहती है हर साल, यू कैन अप्लाई। इंटरनेशनल लेवल की एसोसिएशन बनी हुई है, जैसे हमारे यहाँ टीचर एजुकेशन एसोसिएशन है, मैंने एसोसिएशन ऑन टीचर एजुकेशन आर देयर, बहुत सी एसोसिएशन है, किसी ने नेशनल लेवल की बना रखी है, किसी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल की बना रखी है, किसी ने स्टेट लेवल की बना रखी है। नेशनल लेवल पे बहुतों ने अलग अलग तरह के नाम दिए हुए हैं, उनके जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरीज हैं, वो आपको मेंबर बनाते हैं। आप, आई नो इट वेरी वेल, यू आर द मेंबर ऑफ द सम टीचर एजुकेशन एसोसिएशन। तो वो कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, हर साल कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, सेमिनार करते रहते हैं, जर्नल निकालते रहते हैं, आपको मेंबर को भेजते रहते हैं, मेंबर को फायदा होता रहता है। तो ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल की जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी एसोसिएशन बना रखी है हर फील्ड में इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन। तो आप टीचर एजुकेशन में एसोसिएशन में उनको ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप नेशनल इंटरनेशनल मिल जाएगा। आप वहाँ पे वो सेमिनार भी करते हैं, कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, पब्लिकेशन भी निकालते हैं। तो यू कैन आल्सो ज्वाइन। अब डिफरेंट कंट्रीज की है, इंटरनेशनल लेवल की है, हर सब्जेक्ट की है, अब टीचर एजुकेशन की भी है। तो you can become the member and you join them and you organize the seminar और different part of the world में आप जाइए, और वहाँ जाएंगे तो देखिए आपको डिफरेंट कंट्री के लोग मिलेंगे, डिफरेंट टीचर एजुकेटर मिलेंगे, वो जो क्या काम करते हैं उनके बारे में पता लगेगा, क्या क्या जो है नई रिसर्च करते हैं, नया नया क्या क्या काम किया है, यू विल कम टू नो। और आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, और फिर आप अपने कंट्री में आके बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है, ये निकालती रहती है फेलोशिप और स्कॉलरशिप। तो देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एट द इंटरनेशनल लेवल। तो प्लीज avail the opportunity, conduct the Swedish International Development Corporation है सीडा। सीडा जो है 1995 में एस्टेब्लिश हुई थी, इसका हेडक्वार्टर स्वीडन में है, और ये सब जो है आपको दे प्रोवाइड फंड है, उसमें खोल लीजिए। उसमें यूके इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, यूके आपको देता है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप हर साल देता है। तो ब्रिटिश स्कॉलरशिप, you avail it, you go there, you learn it, you share your work,
आप दूसरों लोगों की मदद करेंगे, हमारा इंडिया भी बड़ा एडवांस है, हम भी बड़ी अच्छी रिसर्च करते हैं, तो दे विल आल्सो लर्न फ्रॉम अस। ऐसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के मेंबर बनिए और फिर वहां पे आप रिसर्च करिए। ऐसी बहुत सी एमिनिटीज है, मैं आपको कुछ बता पाया हूँ, ज्यादा नहीं बता पाया, क्योंकि देयर आर सो मैनी एंड विच यू शुड अवेल एंड यू शुड कंडक्ट। और एक बार आप रिसर्च करने लग गए तो देखना आप होल लाइफ यू विल कंडक्ट रिसर्च। और रिसर्च करने लग गए तो देखिए आपको कितना फायदा होगा, आपके साथ काम करने वालों को कितना फायदा होगा, बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा, और आपका जो काम होगा वो दूसरों की मदद करेगा, हमारी सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूव करेगा, और अल्टीमेटली हमारा देश फायदे, क्योंकि जो आप अच्छा काम करेंगे रिसर्च का, अल्टीमेटली जो भी काम कर रहा है, कहीं भी कर रहा है कंट्री में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अच्छी रिसर्च जो कर रहा है, हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आवर कंट्री विल मेक प्रोग्रेस। अब हमारे पास 15 मिनट रहे हैं, तो आपका कोई सवाल, आपका कोई सुझाव, एनी क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से वी शुड डिस्कस इट, और उसमें जो बातें रह गई है वो क्लेरिफिकेशन के लिए मैं कोशिश करूंगा। हो किसी के मन में कोई सुझाव हो, आप जो है ओपन डिस्कशन है सर, सपोज बताइए। करिए हम अभी जॉब में है सर, हम लोग अभी गवर्नमेंट जॉब में है, तो जी। अगर हम यूजीसी से फंडिंग लेना चाहे हमारे पीएचडी के लिए, तो क्या हमें पेमेंट मिल सकती है? क्योंकि हम फेलोशिप नहीं ले रहे, हम तो वैसे ही सैलरीड है। नहीं, देखिए सैलरी के साथ आपको जो है छुट्टी मिलती है, स्टडी लीव, स्टडी लीव Yes, मिलती है sir. विद सैलरी। तो आपको Yes, sir. सैलरी मिल रही है 2 साल की, 3 साल की, यू कैन कंडक्ट इट, तो आराम से आप स्टडी लीव ले लीजिए। डॉक्टर असरीन खान मैडम। ओके सर, थैंक यू। सर हाँ ये, हाँ बोलिए। सर अभी संदीप जो- रॉय। हेलो सर। डॉक्टर रॉय सर- बोलिए। सर यूजीसी का जो माइनर रिसर्च ग्रांट अभी ऑलरेडी बंद हो चुका है क्या सर? माइनर रिसर्च ग्रांट they जरा are not providing the minor research grant as before. आप तेज से बोलिए। आपने कहा भाई यूजीसी माइनर यूजीसी का जो माइनर रिसर्च ग्रांट बारे में अभी नहीं आ रहा है लास्ट फ्यू इयर्स माइनर रिसर्च। हाँ, देखिए ऐसा है डॉक्टर रॉय, मैंने आपको बताया ये जो स्कीम है, मैं देखिए अंदर की बात मैं नहीं आपको बताना चाह रहा हूँ, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो यूजीसी को जो पैसा बॉडी है, और हम जितने भी लोग हैं कंट्री में, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं काफी आप लोगों से बात करने का मौका मिल जाता है, तो हम सब लोग यूजीसी में अप्लाई करते हैं, तो फंड होते हैं लिमिटेड, हर साल मिनिस्ट्री से, फिर अगले साल किया जाता है, तो कई बार कम हो जाता है। दूसरी बात, ये जो स्कीम्स हैं, मैंने शुरू में कहा कुछ स्कीम लगातार कंटिन्यू करती है, कुछ स्कीम बीच में डिसकंटिन्यू भी हो जाती है, नई भी स्कीम आ जाती है। जैसे मैंने अब 2022 की स्कीम बताई, उसमें 5-6 स्कीम नई आ गई 2022 में। अब एक सिंगल गर्ल चाइल्ड है यार ये। अब बात रही कि भाई आपको माइनर प्रोजेक्ट करना है। अब माइनर प्रोजेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कॉलेज का लिए अलग से जो है वो उसके अंदर आप डालिए, कॉलेज का जो मैंने बताया था उसमें डालिए। फिर वहां नहीं मिलता है तो किसी एनजीओ से लीजिए, एनजीओ से नहीं मिलता है तो किसी जो है प्राइवेट सेक्टर से लीजिए। तो आप हताश ना होइए, आप कोशिश करते रहिए, कहीं से पैसा आपको मिल जाएगा, मगर अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए, आपका अच्छा प्रपोजल होना चाहिए, तो somebody will give you the money. I think it is clear to you, Dr. Roy. Thank you sir. Thank you sir. Any other? आप बताइए, खुल के बताइए। शर्मा जी बताइए। पूछ रहा था जितेंद्र जी बताओ। जी, मैं ये पूछ रहा था, ये नीति आयोग का योजना जनरल है, उसकी मेंबरशिप लेने के लिए क्या निशुल्क आएगा घर पे, या मेंबरशिप पे पैसे जमा होंगे? नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं होती है। नीति आयोग में आप आर्टिकल भेज सकते हैं, नीति आयोग आपसे आर्टिकल अच्छे लोगों से कहता भी है लिखो, और ऑनरेरियम भी देता है। आप उसको पढ़ लीजिए। आप नीति आयोग का खोलेंगे ना जी, नीति आयोग सब पता लग जाएगी, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। थैंक यू सर।
आपको कोई जनरल पैसा नहीं देता। ये देखो इतना बड़ा कंट्री का जनरल है, प्राइम मिनिस्टर जिसको पढ़ता है वहां का है। ये तो सब पैसा लेते हैं, आपको शर्मा जी अच्छी तरह पता है। सर जी सर। हाँ, सर थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, सर बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर सर हाँ, एक एक करके। ओके ओके यू फर्स्ट कंटिन्यू मिस्टर डॉक्टर समई, देन डॉक्टर चाव। यस, समई साहब बताइए। ओके सर। सर एक्चुअली me and Dr. Roy, Sandipan Roy, जी we are running the DST SERB project जी and with the collaboration of IIT Kharagpur, जी and with that one 90 days attendance in the Kharagpur IIT is mandatory. जी। So is there any provision to get leave from the college for Yes, there is a fulfilling provision. that 90 days? You know, Actually there is no written provision, so sometimes college say that there is no देखिए, written provision. you are employee of the council. First priority is you have to see the you can say what is the priority of your college. But second thing, you and Dr. Rai are conducting the project in IIT Kharagpur. So your project Yes, might yes. have been sent through your university. Your proposal Yes. might have been forwarded from university. From college, Where sir. you From might- college. From college. Ajay, From college. From through college. sir. college. So college Yes. authority knows it, that they Yes, yes, require certain leave also. So Okay, sir. if they are not agreed, they will not send the project. They would have not send. If they would have sent, then you can request them, then they can manage. No doubt in Okay, it. sir. But it Thank depends you, on college authority. You can say, you convince. सर आपने ही तो कहा था खड़गपुर के साथ पीएचडी का वो प्रोजेक्ट करना है रिसर्च का। अब फिर आप छुट्टी नहीं देंगे तो हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, फिर हम जो है वो जो पैसा आया है वो यूज नहीं होगा, फिर कॉलेज डिफॉल्टर हो जाएगा, कॉलेज बदनाम हो जाएगा। तो आप कॉलेज अथॉरिटी से कन्विंस करिए, तो एकोमोडेट कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जब कॉलेज ने भेजा है तो वो अच्छे काज के लिए भेजा। NOC दिए थे। चलिए, Yes. डॉक्टर Okay, चाव। thank you, sir. हाँ Okay. सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब ये जो ICSSR का जो मतलब प्रोजेक्ट्स है, ये कौन से एरिया में हम लोग मतलब करने से मतलब फंडिंग जल्द मिलेगा या मिलने से संभावनाएं है सर? ICSR है, इसका नाम ये इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तो सोशल साइंस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इन सब में जो है आपको पैसा मिलेगा। साइंस का नहीं है, सोशल साइंस का है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि बहुत से प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोशल साइंस के देते रहते हैं। जैसे 31 स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब जुलाई में अनाउंस किया सेपरेटरी एडिशन, वो तो बाकी तो आप पब्लिकेशन ग्रांट और सब ले ही सकते हैं ICSR से, जो मैंने बताया, बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं। इंटरनेशनल वगैरह सब मिलती है, मगर जैसे प्रोजेक्ट निकाल दी 31, अब उन्होंने कहा भाई सभी पूरे इंडिया से, अब पूरे इंडिया में देखो इनका कितना इम्पैक्ट हुआ लोगों के पास। तो सारे इंडिया में, चाहे कॉलेज में हो चाहे यूनिवर्सिटी में हो, सब ने प्रोजेक्ट लिए और सब रिसर्च कर रहे हैं और पैसा भी सरकार दे रही है, तो सोशल साइंस के अंदर। और बताइए, और किसी का सवाल? शशिकांत यादव जी बताइए। आप वीडियो भी ऑन नहीं कर रखा है भाई, सभी वीडियो ऑन कर लो, कम से कम आप हम आपस में एक दूसरे को देख तो सके, कहीं ना कहीं मिलेंगे फिर आपसे, कम से कम हेलो तो होगा। वी विल विश ईच अदर, कहीं ना कहीं मिलेंगे। अब आप सारे देश से हैं, मैं भी किसी प्लेटफॉर्म में, कहीं सेमिनार में, किसी वर्कशॉप में, कहीं मुलाकात। हाँ जी, हाँ हिमांशु बताइए। डॉक्टर हिमांशु कुमार जी कुछ कह रहे थे? भाई देखिए, आपने कोई पूछना हो, कोई मेरे को सुझाव देना हो तो वेलकम, नहीं तो बंद कर देते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? सर नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरे को ये जानना था कि हम लोग हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस से बिलोंग करते हैं,
हम लोग जब अपना कोई प्रोजेक्ट भरते हैं तो हमको नहीं वो ग्रांट होता, हमें नहीं मिलता है, तो फिर हम क्या करें? नहीं, आपको ग्रांट मिलेगा, क्यों नहीं करेगा? सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के थ्रू भेजो, अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो सभी को मिलता है। आपने कभी भेजा कभी किसी को? यस सर, सर मैंने अपना प्रोजेक्ट लेकर के मैंने भेजा तो मेरा नहीं हुआ, और वही प्रोजेक्ट मैंने जब एएमयू वालों को दिया, उनका हुआ, उनका हो गया वो सेम हाँ, प्रोजेक्ट। नहीं वो देखिए, ये आई एग्री, ऐसा होता है। देखिए, उसमें दो बातें होती है मैडम। एक तो मैं आप सबको बता रहा हूँ बड़ा फ्रैंकली, आप कोई एक तो ऐसी प्रॉब्लम हो जो उनके एरिया की हो। जितनी भी फंडिंग एजेंसी है ना देश के अंदर, तो सबके अपना एरिया है। अगर हमें इस एरिया में रिसर्च करानी है, ठीक है, वहां लिखे होते हैं उसके अंदर। अब जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में दो एरिया है, एक स्कूल एजुकेशन, एक टीचर एजुकेशन। तो टीचर आप जो है कैरिकुलम में, असेसमेंट में, वोकेशनलाइजेशन में, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। अगर आप इनमें करोगे एलिमेंट्री लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, टीचर एजुकेशन में, इन सर्विस में, सब चीज लिखी हुई है। तो ये तो है एरिया, प्रायोरिटी एरिया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा प्रपोजल कैसे बनाना है। तो हर एक फंडिंग, जैसे एनसीईआरटी ने उसके 15 स्टेप दे रखे हैं। अब भाई ये टाइटल है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें लिखोगे आप, ठीक है। और फिर वो प्रपोजल बढ़िया होगा तो एनसीईआरटी भेज दो, टीचर एजुकेशन वालों को पैसा लिख जाएगा, चाहे वो सेल्फ फाइनेंसिंग का हो और चाहे किसी का हो, चाहे प्राइवेट एजेंसी का हो। मगर उसमें एक बात है कि एक तो आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल बढ़िया होना चाहिए, एक प्रॉब्लम बढ़िया होनी चाहिए जो उनके हिसाब से हो, और तीसरी बात उनको ये एश्योरेंस होना चाहिए, ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, ये पैसा जो हम दे रहे हैं रिसर्च करके देगा एनसीईआरटी को। ये नहीं कि वो पैसा फिर वो कहीं एक इंस्टॉलमेंट ली, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर वो लिटिगेशन हो जाता है। सर मगर ये एश्योरेंस कैसे दें? हम तो करना चाहते हैं। एश्योरेंस तो आपका कॉलेज देगा, आपका कॉलेज के थ्रू जाएंगे, वो तो फर्स्ट पे खत्म हो जाता है। नहीं, वो आपके साथ बॉन्ड वगैरह सब भेजेंगे वो एनसीईआरटी वाले। ऐसी फिर सब एजेंसी भेजती है कि ये जो है इस पे स्टैम्प पेपर पे आपको करके देना है, वो सारा पूरा रिकॉर्ड आपको जाएगा, वो सब पूरा करके भेजेंगे तो बस हो जाएगा। और दूसरी बात डॉक्टर शहनाज, आप क्यों गवर्नमेंट सेक्टर में किसी एनजीओ के साथ मिलकर कर लो, किसी इंडस्ट्री के साथ मिलकर कर लो, प्राइवेट सेक्टर में। सर मैं किसके साथ जाऊं? मुझे अच्छे से रास्ते भी पता नहीं है कि मैं किसके रास्ते साथ। की जरूरत नहीं है। देखिए, रास्ता मैं बता देता हूँ आपको। आप कहाँ से हैं? विच प्लेस यू बिलोंग? सर अलीगढ़। अलीगढ़ से हैं तो आप सिंपली गूगल पे लिखो लिस्ट ऑफ एनजीओ अराउंड अलीगढ़, ठीक है। तो आपको सैकड़ों मिल जाएंगी, उनके एड्रेस मिल जाएंगे, उनको खोल के आप उनको ईमेल डालो, मैं रिसर्च करना चाहता हूँ इस फील्ड में, आप मेरी मदद, वी कैन कंडक्ट ज्वाइंट रिसर्च। तो कोई ना कोई यहाँ भर लेगा, ऐसे ही कोई इंडस्ट्री यहाँ भर लेगी। फिर आपको जरूरत नहीं, ऐसे ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, मैंने आपको बताया, आप पैसे की कमी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत कर लो तो आपको लॉट ऑफ फंड यू विल गेट। और किसी का कोई सवाल हो? थैंक यू वेरी मच। यस सर, मेरा एक सवाल है सर। आप बोलिए साहब। हाँ सर, सर ये है कि जैसे कई सारी एजेंसीज बॉन्ड करके रखती हैं कि इतना एक्सपीरियंस चाहिए आपका टीचिंग का या रिसर्च का। जैसे अभी स्टेट गवर्नमेंट ने एक बॉन्डिंग कर दी है कि उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट मेरे पास चल रहा है ऑलरेडी, अब दूसरा प्रोजेक्ट भेजा तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वो देखिए ऐसा है, जो फंडिंग एजेंसी चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वह उनकी कंडीशन तो पूरी करनी पड़ती है जी। मगर आप पहले कंडीशन भी यही थी, तो मैंने प्रोजेक्ट भेजा, एक्सेप्ट भी हो गया और फंडिंग भी हुई मुझे। अच्छा, नहीं तो फिर आप ये जस्टिफिकेशन लिख के भेजो, अगर आपने मेरा कहा है और आप कर रहे हैं तो मेरे दूसरा दिया जाए। आप उनको ईमेल भेजो, रिक्वेस्ट करो, अपील करो तो मिल जाएगा। दूसरी बात, डॉक्टर राहुल कुमार, आप एनजीओ से लो, इंडस्ट्री से लो, इंटरनेशनल से लो, आपको इतने रास्ते बताए हैं, वो मना कर दे कोई बात नहीं,
हताश क्या होना है, यू गो नहीं, फॉर हताश नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ कि पहले पहले बहुत अच्छी बात है, वहां वैसे अपील करो, रिक्वेस्ट करो, अपना लेटर भेजो, ईमेल भेजो, हो सकता है Yes, दे sir. विल कंसीडर योर रिक्वेस्ट एंड यू विल गेट इट अगेन। Thank तो you. मगर रिसर्च जरूर करते रहो। यस सर, थैंक यू सर। और किसी का सवाल हो बताइए, एनी फ्रेंड हु वांट्स टू आस्क क्वेश्चन। ये डॉक्टर चंद्रानी आचार्य रॉय Yes, sir. है, हाँ बोलिए। Yes, sir. I'm Dr. Chandrani from Calcutta Girls BT College in Kolkata. ओके, Yes, sir. I'm associate professor there. So we are doing that proposal for the minor research project. But my question is that if I want some fellow researcher with me, just like I am the IQS and I have some administrative duties in my college, so I cannot afford my full time in this project. So if I want to take some fellow researcher with me in this project, so what are the facilities or what are the procedures for that? If I want to take some fellow researcher with me. Dr. Roy, in every project, there is a need for the research assistant, research fellow. So you have to mention the salary of the research project fellow, research assistant, their TADA for data collection. Everything should be mentioned in the research proposal. And when the funding agency consider your proposal, they will see everything. उसमें देखेंगे डॉक्टर रॉय ने कितना पैसा जो है सजेस्ट किया है, कितना जो है सैलरी सजेस्ट की है, कितना TADA का किया है, कितना टोटल एक्सपेंडिचर, हर चीज आपके प्रपोजल में होनी चाहिए। वो प्रपोजल पास हो जाता है तो फिर सारी चीजें यू विल गेट द फंड अकॉर्डिंगली, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन इट। मगर आपने अगर प्रपोजल में नहीं दिया है, इफ यू आर नॉट मेंशन इन द प्रपोजल एंड योर प्रपोजल इज अप्रूव्ड, then it is very difficult. Sometime they may consider, sometime they may not consider. तो प्रपोजल में सब चीज डाल दीजिए, जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है, जितने भी ह्यूमन अपने आपके साथ काम करेंगे, तो प्रोजेक्ट तो टीम वर्क में ही होगा। अब डेटा कलेक्शन के लिए यू आर इन सर्विस, हाउ यू विल गो टू द कलेक्ट डेटा। आपने 5 करने हैं, 4 करने हैं, 6 करने हैं, टाइम पीरियड एवरीथिंग, यानी प्रपोजल। ये अगर ये मैडम जो हमारी नसरीन है, अगर ये इनके पास समय होगा तो मैं आपको एक प्रपोजल पे भी लेक्चर दे दूंगा, कैसे प्रपोजल बनाया जाता है। तो यू so nice, sir. नहीं, आई एम नॉट नाइस बट आई एम रेडी टू ऑफर माई सर्विसेज, डिपेंड ऑन देम, depend on the you can say MMTC Aligarh. If they had time and you may request them, then I can deliver the lecture. Otherwise आप प्रपोजल हर एक फंडिंग एजेंसी का होता है और प्रपोजल सही होना चाहिए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आई। और किसी का कोई सवाल हो तो then there is no, you are welcome। और कभी भी मेरे से आप फोन करके पूछ सकते हैं, आई कैन हेल्प यू, मगर रिसर्च करिए आप। Thank you, sir. Should I close? Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for you, sir. comprehensive and elaborate. Thank you, sir. Thank you, sir. so Thank you much, very sir. much. सर मैं Thank you आपसे so कुछ much. पूछना चाह रही थी। हाँ जी बताइए डॉक्टर त्रिपाठी, बताइए। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अब तो यूजीसी ने पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी कह दिया है कि आप कर सकते हैं, तो इनकेस कोई पार्ट टाइम पीएचडी कर रहा है तो क्या उसके लिए कोई ऐसी स्कीम है जिसमें वो लीव लेके या किसी अदर वे से पीएचडी कर पाए, यदि वो फैकल्टी है तो? अरे फैकल्टी को तो स्टडी लीव मिलती है, तो 2 सर क्या साल पार्ट की। टाइम पीएचडी में भी स्टडी लीव मिल सकती है? कौन से में? सर पार्ट टाइम पीएचडी, पार्ट टाइम में भी मिल सकती है, वो आप रूल पढ़ लीजिए, यू कैन गेट इट। उसमें मैडम ज्यादा पार्ट टाइम नहीं करती है, उसमें भी स्टडी लीव जितने आपको रिक्वायरमेंट है। अब पूरी स्टडी लीव 2 साल होती है, फिर 1 साल एक्सटेंड हो जाती है,
कई जी, लोग अब अपने पीएचडी करते रहते हैं साथ साथ, और फिर जब रिक्वायरमेंट होती है 5-6 महीने की छुट्टी तो ले लेते हैं। वो दो अपना डेटा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फिर भी कभी कोई आपको हो, then you can talk to me. Thank you, sir. Professor Nasreen, etc. I am always ready to help you people. मगर मेरा ये आपका कहना है, I will be thankful to you when you conduct the research, when you take the project in research in the teacher education. क्योंकि टीचर एजुकेशन में बहुत जरूरी है रिसर्च। मैं बार बार कहता हूँ, टीचर एजुकेशन इज ए मदर ऑफ आवर डिसिप्लिन। समझ गए नहीं? आप सब समझते हैं टीचर एजुकेशन। Thank you, sir. तो Thank you इसके so हर much. पहलू में, चाहे मटेरियल डेवलपमेंट हो, चाहे कंसेप्चुअल हो, चाहे इन सर्विस हो, चाहे प्री सर्विस हो, डिफरेंट स्कीम टीचर एजुकेशन के, डिफरेंट कंपोनेंट पे रिसर्च करिए। और पैसे का मैंने आपको बता दिया है, lots of funds are available throughout India in different national level, international level, NGO, private sector, corporate sector, और फिर भी कोई आवश्यकता हो कहीं असिस्टेंस की, you are welcome. So I am very thankful to Professor Nasreen and Madam Professor Abbasi, Director MMTC. They used to give me opportunity to meet you people. Otherwise, it was very difficult to meet you. Yeah, so really I am very thankful, and because they have given me opportunity to interact with you, and I can do something for you. I hope you will use all these resources, and these resources are not today. Throughout your career, you can use it. I have told a few things to you. Thank you very much, Madam Sir, very Nasreen. grateful, Thank very you. grateful. We all are very grateful that you delivered such a comprehensive and informative lecture, and our young teachers need such kind of lectures and such kind of information just to make the professional development as excellent path. So thank you very much. Thank you very much. Again, we will be meeting somewhere, sir. Thank you. Namaskar. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you. मेरा सब थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Very Thank you, informative. ma'am. Thank you. Students, Yeah, have a nice day. I am taking leave. Thank you very थैंक much. यू सर। for the next lecture, we will meet at 10:45. Okay? ओके मैडम। Please wait for Okay, second ma'am. result. Okay, ma'am.